Hello students, how are you? I hope you all will be fine. In today's lecture, we will discuss the measurement of length for small distances. These distances are small in the range of nanometers and angstrom. That is 10 raised to power minus 9 meter, 10 raised to power minus 10 meter. Even it can be used for the dimension up to picometer also. So we will discuss the methods. Let us proceed. So measurement of length, we have discussed these methods in previous two lectures. Now in this lecture we will discuss the three methods: Avogadro's method in detail, size of molecule of oleic acid, and the third it will be introduced as Rutherford method. Just introduction we will do. Now we will start with Avogadro's method. हाँ जी, सो ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे हैं Avogadro's method. एवोगैड्रो ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ what is it? It is 6.023 into 10 raised to power 23. ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਅ ਮੋਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ the distances of the order of 10 raised to power minus 10 meter are measured using this method. So 10 raised to power minus 10 means 1 angstrom. So ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ angstrom ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਐਟਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟਮ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਫੈਰਿਕਲ ਬਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਨੀ ਸਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਹੈਗਾ। ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਨਾਓ। ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ 1 ਐਟਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਟਮ, ਥਰਡ ਐਟਮ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਿਸਕਾ ਦਈਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਟਿਪ ਹੈ ਇਸ ਸਫੇਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਨ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੇਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੇਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਵੇਟ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? ਵੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਜਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਐਟਮਸ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ, ਜੇ ਐਟਮਸ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇੱਕ ਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੋਵੇ ਤਾਂ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ, ਇਹਦਾ ਵੀ 4/3 ਪਾਈ r 2 ਕਿਊਬ, r3 r4, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪੀਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਪੀਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ वॉल्यूम है टोटल पीस का, उनके चों अगर मैं आ माइनस करदा, आ सारा वाला वॉल्यूम माइनस करदा, किहड़ा वॉल्यूम जिहड़ा स्फेयर दा S1 S2 S3 S4 S5 ये जिन्ने भी मैं बनाए है 18 स्फेयर ने है ना, मान लो भी 18 स्फेयर का मेरे को स्ट्रक्चर है, इहदे वॉल्यूम चो टोटल वॉल्यूम चो अगर मैं स्फेयर का वॉल्यूम माइनस करदा तो मेरे को की रह जूगा, एम्पटी स्पेसिस। ठीक है, बस यही कॉन्सैप्ट आप यूज़ करना। हुण एवोगैड्रो की कहती है हाइपोथेसिस, कहते एवोगैड्रो हाइपोथेसिस सेज दैट द वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन एनी मास ऑफ सबस्टेंस, आ मास एक साइड ते रख दो, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन ए सबस्टेंस इज 2/3 of the volume occupied by that mass of the substance। ठीक है, पहला कदी गल की है एटम्स का वॉल्यूम जिहड़ा आपां कैलकुलेट किया 4/3 πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 आपां सारा जो जोड़ लिया है ना, एक वो चीज़ वो कादे बराबर होगी 2/3, मान लो भी आ अपने कोल A है तो आ अपने कोल B है, सो ए बी तो इधर नूं जिहड़ा होऊगा सी होऊगा टोटल, सो आप मान लैंदे आ ए इंटू बी इंटू सी है ना। सो वो वॉल्यूम का जिहड़ा ए बी सी वॉल्यूम का उन्होंने अगर 2/3 नाल मल्टीप्लाई कर दिए, वट वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दीज एटम्स ओनली विच इज नॉट इंक्लूडिंग द स्पेस। ठीक है, सो दोबारा इस चीज़ में पढ़ लो, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन एनी मास ऑफ सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी, अगे आप करते हैं प्रोसीड। हुण इहदी कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन कितना करांगे, आ डायग्राम दिमाग च रखनी है। ठीक है, इस चीज़ को अगर दिमाग च रखिए आप अगे प्रोसीड करते हैं। सपोज कहता मास ऑफ ए सबसटेंस M, जिहड़ा मैं तुहानूं कहा कि आप एक सबसटेंस लिया उनका मास जिहड़ा आप M ले लिया। ठीक है, वो रख लिया मास ऑफ सबसटेंस M। नैक्सट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सबसटेंस जिहड़ा आप ABC कह रहे सी V, मेरे को एक क्यूब हैगा, क्यूबिकल मास हैगा। ठीक है, सो क्यूबिकल मास का जिहड़ा वॉल्यूम है मेरे को V है मान लो। सो मैं इत्थे की कीता डेंसिटी ऑफ द सबसटेंस किद्दां हुंदी है, डेंसिटी की हुंदी है घनता, जिहनूं बोलदे आं आपां डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, किन्ना मास किन्ने वॉल्यूम च हैगा, मीनस आप कह दिंदे ने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उवें अपने कोल लिखिया जाना। सो डेंसिटी अपने कोल किद्दां कैलकुलेट होगी, मास बाय वॉल्यूम। सो इत्थों आपां वॉल्यूम कट के लिख लेना एक बार, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय रो, वॉल्यूम ऊपर चला गया रो थले आ गया। ठीक है, सो नैक्सट इस तो बाद की होगा, इस तो बाद आउंदा let us suppose that atomic weight of substance is m। पहला तो आप बल्क की गल कर ली, टोटल वेट की, हुण उस तो बाद आप गल कर रहे हैं सिंगल एटम की। एटॉमिक वेट, एक एटम का वेट कितना है m। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ सबसटेंस m। सो एवोगैड्रो नंबर n। ठीक है, सो आप एक गल कहने होंने जो मास आप डिफाइन किया सीगा, तुहानूं याद होवे एक डेफिनेशन है लैक्चर च दोबारा ये सुन लियो, आप डिफाइन किया सी भी एटॉमिक मास यूनिट जिहड़ा हुंदा है एक तो डिफाइन किया सी, फिर एक मोल जो आप पढ़ते हैं ना उहदे च हुंदा भी जे मान लो कार्बन का मास जिहड़ा आ अपने कोल, ठीक है 12 AMU है ना एटॉमिक मास यूनिट, तो आप ये कहने हैं भी 12 ग्राम 12 ग्राम कार्बन दे विच अपने कोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। ये गल क्लीयर है ना, बस इस गल नूं दिमाग च रखना। सो एवोगैड्रो नंबर भी आप इत्थे इंट्रोड्यूस करांगे n। सो कहंदा दैन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ एटम्स इन मास m, ठीक है m ग्राम पर्टिकुलरली, किन्ने एवोगैड्रो नंबर आप कहने ना 12 ग्राम या 12 ग्राम कार्बन कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स n, that is Avogadro number, that is 6.023 into 10 raised to power 23. So number of atoms in unit mass, number of ये अपने को यूनिटरी मेथड में ला के दिखाया तुहानूं। सो अपने को मास नंबर ऑफ एटम्स इन मास m जिहड़ा गिवन आ जिहड़ा एटॉमिक मास है सॉरी है ना, उहदे विच अपने कोल किन्ना n। हुण की है
नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट मास आप कहते हैं यूनिटरी मैथड एक दे लई इन्ना इन्ने दे लई इन्ना फिर एक दे लई कितना हो एम जिहड़ा है थल्ले जाके डिवाइड हो जाऊगा एन बाय एम। सो फिर आप एंड ते लिखांगे भी अगर मास एम अपने कोल सबसटेंस का जिहड़ा आपां मेजर कीता ठीक है लैके जिहड़ा आपां इत्थे फिल कीता सी आ वाला एम इन्ने मास दे विच अपने कोल किन्ने नंबर ऑफ एटम्स होणगे आ जाणगे इत्थे आपां इहदे नाल सिंपली एम मल्टीप्लाई कर दांगे। सो दैन नंबर ऑफ एटम्स इन मास एम इज इक्वल टू एम इंटू एन बाय कैपिटल एम। सो इफ आर इज द रेडियस ऑफ ईच एटम इन्नी गल होगी। हुण अगे चलते हैं अगर आर जिहड़ा है हरेक एटम का रेडियस है ठीक है आर हरेक एटम का रेडियस है मान लो भी इक्को एटम दे है जिवें कार्बन का पीस लगा लो कोई। सो डायमेंशन तो कार्बन दे जिहड़ी कार्बन दे एक एटम की वही कार्बन दे दूजी एटम की होगी। सो आपां मान लांगे कि आर उनका रेडियस हैगा आ। सो एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब ठीक है। दैन आफ्टर दैट सो वॉल्यूम ऑफ ऑल दी एटम्स इन सबसटेंस की बनूगा अपने कोल विल बी इक्वल टू ध्यान नाल सारे एटम्स जिन्ने सबसटेंस जे हैगे आ उन्हां सारियां दा वॉल्यूम कादे बराबर होऊगा नैचुरल कादे बराबर एक एटम का कितना वॉल्यूम है इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ठीक है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन सबसटेंस। सो अपने कोल की आ जाऊगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू एम एन बाय एम आहा वाला इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर। सो अपने कोल ए एक होर फार्मूला बन गया। सो हुण ध्यान दो पहला आपां वॉल्यूम कढ लिया सी पूरे पीस दा है ना वो अपने कोल की आया सी मास बाय रो डेंसिटी। सैकेंड आपां कढ लिया कल्ले जिन्ने उहदे च एटम्स हैगे उन्ने बल्क च कल्ले एटम्स। हुण एम्प्टी स्पेस वाला भी अपने को निकल सकता है जो आप माइनस कर दिए आप माइनस नहीं करते आप एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यूज करते हैं। असी की करांगे दैन अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ सबसटेंस। सो ऑल एटम्स का वॉल्यूम आप इस पासे लिख दिता इहदी थां ते किहड़ा ए वाला ठीक है। सो नैक्सट जिहड़ा इत्थे वॉल्यूम ऑफ सबसटेंस है एम बाय रो जिहड़ा लास्ट टू लास्ट स्लाइड आपां देखिया सी ए वाला ये आपां इत्थे लिख दिता ठीक है। सो बस आप रीअरेंज किया आ जिहड़ी चीज़ कट्टी जाती है वह कट दो एम नाल एम कटिया गया ठीक है बाय 3 है 3 नाल 3 गया इत्थे 2 है इत्थे 4 है। सो ये भी फैक्टर जिहड़ा कैंसल हो जाऊगा अपने को इत्थे रह जाऊगा 2 पाई है ना। सो आर क्यूब नूं एक पासे रख के आर नूं एक पासे रखे बाकी सब फैक्टर असीं दूजे पासे लै जाने। सो अपने कोल की आ जो जिहड़ा इत्थे डिनोमीनेटर च एम ए उपर चला जाऊगा ऊपर चला गया बाय आ सारा कुछ तो कैंसल ही हो गया जिहड़ा उपरला हैगा 2/3 भी हो गया एम भी हो गया थल्ले बटा रो हैगा। सो अपने कोल की आ जो एम बाय रो जिहड़ा बाकी इधरों फैक्टर आया 2 पाई एन बस 2 पाई एन एम तो अपने को ऊपर आ गया एम बाई 2 पाई एन रो। सो ए फैक्टर भी तुसी लिख के देख लेना अपने को आर क्यूब की वैल्यू आ गई। नैचुरली आप दो चीज़ां कर सकते हैं, ਜਾਂ ਤਾਂ क्यूब ਨੂੰ इधरले पासे लै जाने 1/3 हो जू, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ लिख सकते हैं कि both sides take cube root. ठीक है, if we take cube root both sides then we will get r. इतने क्यूब रूट नाल क्यूब कैंसल हो जाऊगा, r will be equal to क्यूब रूट ऑफ m by 2 pi n रो. सो अपने कोल आपां r दी वैल्यू जिहड़ी आ वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द कैलकुलेटेड जिहड़ी वैल्यू r दी होगी वो अपने कोल एंगस्ट्रॉम दी आऊगी इहदे तो. ठीक है, आई होप कि तुहानूं ये मैथड पता लग गया होगा. जे ना पता लग गया दोबारा एक बार सुनियो इनू, जे नहीं फिर भी पता लगता है दैन यू कैन आस्क मी. ठीक है, सो नैक्सट ते चलिए. नैक्सट हैगा अपने कोल एक ईजी मैथड है. ठीक है, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड. एक्चुअल दे विच असीं की करते हैं, ओलिक एसिड का जिहड़ा अपने कोल मॉलिक्यूल आ उहदी आपां ऐ कह लो भी मॉलिक्यूलर डायमीटर आपां कढदे हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये की करते हैं आपां ओलिक एसिड का ना एल्कोहल दे नाल सोल्यूशन बनाने. ध्यान नाल सुन लो सारा. ओलिक एसिड लैके एल्कोहल दे नाल उहदा एक सोल्यूशन बनाने हैं. ठीक है,
थोड़ी जी कंसनट्रेशन का होगा, फिर उन्हें आप होर डिल्यूट कर लें। किदां असी उनकी एक यूनिट वैल्यू लैके कोई 1 ml सोल्यूशन ले लिया मान लो, है ना। 1 ml मीनस मिलीलीटर, दैट इज़ इक्वलेंट टू क्यूबिक सेंटीमीटर। सो आप 1 ml उनका वॉल्यूम लैके सोल्यूशन लैके एक होर वड्डे बीकर दे विच अल्कोहल वाले च पा के आप होर सोल्यूशन बना लें। ठीक है, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा अपने कोल बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। ठीक है, सो असी करांगे कि वो जिहड़ा अपने कोल बहुत ज़्यादा डिल्यूट पतला सोल्यूशन मीनस कित्थे अपने कोल जिहड़ा पहला सोल्यूशन बनाया कित्थे अपने कोल 1000 मॉलीक्यूल्स दे अल्कोहल दे मॉलीक्यूल्स पिछे ओलिक एसिड दे 10-15 आउंदे होणगे। फिर आप होर घटा ले, क्यों अल्कोहल होर ऐड करती, फिर किते 1 लाख मॉलीक्यूल अल्कोहल दा होवे ते उहदे पिछे 1 मॉलीक्यूल ओलिक एसिड दा आउंदा होवे। आप उस सोल्यूशन नूं चकना, उस सोल्यूशन दी कुछ क्वांटिटी आप वाटर ते पा दिंदे। ठीक है, जो वाटर ते पाउने आ की हुंदा, अल्कोहल जिहड़ा आ वो एवैपोरेट हो जाना, एवैपोरेट हो के अपने कोल पतली जी लेयर बच जानी आ ओलिक एसिड दी। सो पतली लेयर जिहड़ी आ उहनूं आपां बाय सम मैथड देख लांगे भी वो लेंथ कितनी है। तो वो पतली लेयर है ना, जिहड़ी इन्नी पतली लेयर हुंदी है, दैट इज़ सपोज्ड कि वो अपने कोल एक मॉलीक्यूलर लेयर बन जाती है। सो सेंट्रल आइडिया जिहड़ा इस मैथड का वो मैं तुहानूं बिना स्लाइड शो किए हले तक दस चुकिया। हुण आपां जस्ट स्लाइड रीड ही कर लैंदे। ठीक है, ना पता लग्या फिर मैनूं पुछना, ध्यान देना हुण सारे मैथड ते। So size of molecule of oleic acid, we will continue. Number 1, the molecule of oleic acids are quite large in size, 10 raised to power -9 meter, that is nanometer, nano, nano। ठीक है, हुण कहने हैं to measure this size we take 1 cc of oleic acid। असी oleic acid दी बॉटल चों, ठीक है, 1 मिलीलीटर या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर चक लिया सोल्यूशन। फिर असी उन्होंने मिक्स किया विद अल्कोहल टू प्रिपेयर 25 cc ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, असी अल्कोहल नाल इदां कीता भी टोटल सोल्यूशन का जिहड़ा वॉल्यूम है बाकी अल्कोहल पा के टोटल सोल्यूशन अपने को बन गया 25 cc का बन गया 25 cc। आफ्टर दैट असी इस 25 cc चों 1 cc लिया होर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, जो इस सोल्यूशन का लिया उन्होंने असी फिर अल्कोहल नाल मिक्स किया, अल्कोहल च पाता किन्ने सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन बनाना है 20 टोटल। जो टोटल इन्ना बन गया फिर आपां की कीता देखिया जावे, पहला आपां 25 च 1 सी। ठीक है, फिर अपने कोल 20 पिछे 1 हो गया, मीनस सीसी सेम यूनिट है, 25 मॉलीक्यूल्स पिछे 1 मॉलीक्यूल, फिर होर मिलाया 25 दूना 50, तो 50 के नाल 1 0 होर 500 हो गया, है ना। सो 500 मॉलीक्यूल्स अल्कोहल दे होणगे तां उन्हां पिछे 1 मॉलीक्यूल अपने कोल ओलिक एसिड दा होगा। मीनस इन दिस वे सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल विद कंसंट्रेशन इक्वल टू 1/500 इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट नाउ हुण जिहड़ा वो सोल्यूशन बनाया आपां 1/500 कंसंट्रेशन वाला। ठीक है, हाँ जी, सो वो आपां जिहड़ा 1 ड्रॉप उहदा लेना है सोल्यूशन का 1/500 का, वो सोल्यूशन नूं असीं की करना पोर n ड्रॉप्स, ध्यान नाल उहदियां आपां n नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करनियां ने, उहदियां n नंबर ऑफ ड्रॉप्स जिहड़ियां आ वो असीं पा देनियां हैगियां वॉल्यूम V दे उत्ते। ध्यान नाल देखिए की लिख रहे हैं, पोर n ड्रॉप्स ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम V, उस वॉल्यूम V चों n नंबर ऑफ ड्रॉप्स जिन्नियां बनगियां वो वाटर दे सरफेस दे उत्ते असीं पा देनियां। सो जिहड़ा वाटर दा सरफेस होऊगा वो अपने कोल खुले भांडे दे विच आपां पानी पा के उहदे ते पाउणी। ठीक है, उहदे वाटर दे सरफेस दे उत्ते वो पा देनी है। ऑयल है, एसिड है अपने कोल, वो जम जूगा, उहदे उत्ते फैल जाना क्योंकि अल्कोहल है हल्की हुंदी है। सो की होगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू n। जब आप फैला देंगे तो वॉल्यूम अपने कोल सोल्यूशन का कितना होगा NV। n की है नंबर ऑफ ड्रॉप्स ते V अपने कोल वॉल्यूम। ठीक है, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम अपने कोल
V है। सो वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड इन सोल्यूशन, तो अपने को सोल्यूशन दे विच जिहड़ी आह बनिया N ड्रॉप, ठीक है, हरेक ड्रॉप का वॉल्यूम V है, तो टोटल वॉल्यूम अपने कोल जिहड़ा सोल्यूशन आपां पा दिता वाटर के उत्ते वो आ, उहदे विच अपने कोल ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा। रिमेंबर ओलिक एसिड इज 1/500। सो असी की करांगे इस वॉल्यूम नाल 500 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। सो अपने कोल की बन गया NV/500। सो दिस सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड स्प्रेड्स वेरी फास्ट ऑन दिस सरफेस ऑफ वाटर, वो की करूँगा, फैल जूगा, एंड फॉर्म्स ए वेरी थिन लेयर ऑफ थिकनेस T। तो उत्ते अपने कोल बहुत ज़्यादा बरीक जी लेयर बन जाएगी। सारा मैथड आप पहला समझ लिया सी, जस्ट रिपीट हो रहा। सो द अल्कोहल इवेपोरेट्स एंड द ओलिक एसिड इज लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, सिर्फ अल्कोहल रह जूगी, सॉरी अल्कोहल उड़ जू, सिर्फ ओलिक एसिड रह जूगा उत्थे। सो यूजिंग ट्रेस पेपर और ए ग्राफ पेपर वी कैन फाइंड एरिया A ऑक्यूपाइड बाय ओलिक एसिड लेयर। वाटर सरफेस उनके उत्ते असी ग्राफ पेपर ले लांगे। ग्राफ पेपर ते डब्बे बने होंगे ने, अपने को क्रॉसेस होंगे ने, स्क्वायर्स। सो जिन्ने ते वो ओलिक एसिड आऊगा उन्ने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपां काउंट कर लेने। सो एक स्क्वायर जिहड़ा हुंदा नॉर्मली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुंदा अपने कोल, आपां स्क्वायर्स देख लेने आ। उहदे विच छोटे स्क्वायर भी हुंदे ने, मिलीमीटर स्क्वायर वाले, वो भी काउंट कर लांगे, तो टोटल एरिया उत्थों फाइंड आउट हो जाऊगा, ठीक है। सो जो वो अपने को एरिया फाइंड आउट हो जाऊगा, की बनूगा, उनके तो आपां ये कढ़ लांगे, ठीक है, वॉल्यूम। यूजिंग द ट्रेस पेपर और ए ग्राफ पेपर फाइंड द एरिया A ऑक्यूपाइड बाय ओलिक एसिड लेयर, ठीक है। हुण अगे वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड इन द लेयर अपने को की होगा A × T, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखो, वॉल्यूम आपां नूं पहले ही पता, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉप्स तो आप देख के पाई हैं, तो किन्ने वॉल्यूम चो किन्नियां ड्रॉप्स निकलियां, वो तो अपन वॉल्यूम पता लग ही सकता है एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो। सो आ वॉल्यूम अपने कोल हैगा आ A दी वैल्यू अपने कोल ग्राफ नाल हैगी, T दी वैल्यू निकल जूगी। एग्जैक्टली वी विल डू इट, ठीक है। सो वी कैन राइट A × T इज इक्वल टू NV/500, दैट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। सो T दी वैल्यू आ जाऊगी, A नूं आपां इधर ले जाएंगे, T विल बी इक्वल टू NV/500 × A। सो आपां T दी वैल्यू इदां फाइंड आउट कर सकते हैं, कहते इफ द थिन लेयर इज अज्यूम्ड टू बी 1 मॉलिक्यूल थिक, अगर वो थिन लेयर जिहड़ी है 1 मॉलिक्यूल थिक होवे, तो वैल्यू ऑफ T जिहड़ी आ वो आपां नूं डायमीटर दा साइज दऊगी। The value of T would give us the size, that is diameter of a molecule of oleic acid. So the value of T comes out to be of the order of 10⁻⁻9 meter, that is nanometer, ठीक है जी। सो इनू भी एक करते ध्यान नाल देख लेना है। नैक्सट है अपने को रदरफोर्ड मैथड। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस्ड मैथड है। सो इहदी जिहड़ी तुहानूं समझ आ वो तुहाडे नैक्सट चैप्टर च कह लो, उत्थे पता लगूगी, ठीक है। जां रदरफोर्ड एक्सपैरीमेंट पर्टिकुलरली असी करते हैं डिटेल दे विच जदों असी अंडर ग्रैजुएट कोर्सेस दे विच हुंदे। सो माड़ा मोटा तुहानूं इहदे बारे इंट्रोड्यूस किया जाता जदों तुसीं एटॉमिक स्ट्रक्चर दे बारे पढ़दे हो, ठीक है। सो आपां इहदा जस्ट एक फ्लेवर लवांगे। सो रदरफोर्ड मैथड, दिस मैथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइजेस। न्यूक्लियर साइज की हुंदे है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। सो व्हेन ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड ने की कीता सीगा, इन्हां ने एटम दे बारे अपना रिसर्च कर रहे सी। सो इन्होंने की किया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव सोर्सिस होंगे हैं, अल्फा पार्टिकल जोड़े है रेडियो एक्टिव रेडिएशनस होंगे ना। सो अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, इत्थे एक गोल्ड फॉयल रखी, उन्होंने की किया जोड़े सोर्स से उतों अल्फा रेज आ रही सी, बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स आ रहे सी। हीलियम का न्यूक्लीयस होंदा वो, ठीक है। सो हाइड्रोजन तो बाद वाला एलीमेंट हीलियम होंदा, उहदा न्यूक्लीयस अल्फा पार्टिकल होंदा।
सो की हुंदा अपने कोल जिहड़ी गोल्ड दी फॉयल सीगी पतली जी लेयर उहदे च कुछ पार्टिकल टप गए क्रॉस थ्रू हो गए ठीक है कुछ सीधे क्रॉस थ्रू हो गए कुछ किस एंगल्स से क्रॉस थ्रू होए मैक्सिमम एंगल्स से क्रॉस थ्रू हो गए ठीक है तो बहुत ही रेयर पार्टिकल सी जिहड़े वापस आए ठीक है उहदे तो उन्होंने ये पता लग्या सी भी अल्फा जिहड़ा आ वो अपने कोल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये अपन पता सो उहदा मतलब की सी भी जे अपने कोल सेम चार्जिस जिहड़े रिपेल करते हुंदे एक दूजे नूं है ना लोअर क्लासिस पढ़े अपन सो जिहड़े पार्टिकल अल्फा पार्टिकल वो वज के वापस आ रहे हैं जिथों वज के वापस आ रहे हैं इट मीनस उत्थे अपने कोल पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड पिया इकट्ठा जिहा होके पिया उत्थों ही उन्होंने डिफाइन किया सी कि अपने कोल जिहड़ा एटम हुंदा उहदे सेंटर च एक न्यूक्लीयस हुंदा आ ते उहदे आसे पासे वाला स्पेस खाली हुंदा ठीक है वो जिहड़ा खाली स्पेस हुंदा उहदे विच उहदे इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने ठीक है सो प्रोटॉन्स जिहड़े आ अपने कोल हैवी ते जिहड़ा भी जिन्ना भी मास है सारा वो सेंटर ते लोकेटेड हुंदा कंसनट्रेटेड हुंदा ते उहदे च अपने कोल पॉजिटिव चार्ज भी सारा उहदे ते ही हुंदा सो उहदे करके अल्फा वापस भी मुड़े आउंदे उहदे करके ही अल्फा जदों अपना पाथ भी डिफ्लैक्ट कर देंदे ठीक है सो आपां ये मैथड रदरफोर्ड दा एक्सपेरिमेंट बेसिकली तुहानूं मैं दस दित्ता थोड़ा जिहा सो आपां हुण इहनूं पढ़ लैंदे आ जस्ट गो थ्रू इट डोंट टेक हार्ड सो दिस मैथड is used for measuring nuclear sizes गल होगी when a beam of alpha particle is made to hit an extremely thin metal foil normally gold दी foil हुंदी है some of the alpha particles retraces its path retrace so जेडे alpha particle retrace मतलब वज के वापस आ जांदे जिद्दां बॉल कंध नूं वज के वापस आ जांदी ठीक है it hits the wall and come back its path turning through 180 just opposite ठीक है this led Rutherford to the discovery of atomic nucleus in which the entire positive charge and almost entire mass of atom are supposed to be concentrated ठीक है ये गल आपां कर ली हुण थोड़ा जिहा मैथड बारे पढ़ लैंदे कहंदे an alpha particle carries two positive charges when it tends to hit the nucleus it is repelled constantly by positive charge positive ने positive ਨੂੰ repel करना ही करना so nucleus ने ਉਹਨੂੰ repel करना ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ particle ਦਾ toward the nucleus ਆਪਣਾ motion ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ the velocity and hence kinetic energy ਆਪਣੇ ਕੋਲ velocity ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ एनर्जी वेलोसिटी करके मोशन करके होंदी है उन्होंने आप काइनेटिक एनर्जी कह दें सो काइनेटिक एनर्जी अपना लिखते होंगे 1/2 mv², हाफ mv². सो वेलोसिटी एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गो ऑन डिक्रीजिंग नैचुरली अपने कोल पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है जिन्नी तेज आ रहा लग गया कि हौली हो जाऊगा हौली होगा मतलब वेलोसिटी घट गई स्पीड घट गई जो वेलोसिटी घट गई तो अपने को काइनेटिक एनर्जी भी घट गई ठीक है हुण काइनेटिक एनर्जी घटन दे नाल की होगा जोर वध रहा ना न्यूक्लीयस का इहदे ते एटम अल्फा पार्टिकल ते वो जिहड़ा जोर है वो हुण आपां कह देंगे इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जिहड़ी है वो इनक्रीज हो जाती वध जाती एट ए पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा पार्टिकल न्यूक्लीयस नाल स्ट्राइक नहीं करता ਵੱਜਦਾ नहीं पिछों ही मुड़िया आउंदा क्योंकि उन्नी ताकत ही नहीं हुंदी उहदे विच वज्जण दी और रिपल्शन करके वापस मुड़िया आउंदा पिछों ही ठीक है सो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट किसी एक खास पॉइंट दे उत्ते काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम्स जीरो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है इट कैन नॉट गो फरदर वो जा नहीं सकता उस थां दे उत्ते पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होंदी है तो वो वाला डिस्टेंस जिहड़ा हुंदा उहनूं असीं कह दिंदे आ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सब तो ज़्यादा लागे दा डिस्टेंस जिथों तक हद बनदी हैगी जिथों तक पार्टिकल जा सकता ठीक है दिस इज़ द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस ठीक है द अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ फ्रॉम दिस पॉइंट सो आगे लास्ट की द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस गिव्स व्हाट एन अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस वो जड़ा अपने कोल
क्लोजेस्ट डिस्टेंस हैगा आ, ठीक है, जिहड़ा क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ वो आपां नूं दिंदा आ वैल्यू कादी, न्यूक्लीयस दे रेडियस दी। जे न्यूक्लीयस नूं आपां जस्ट लाइक एक स्फेरिकल बॉल मान लीए तो जिहड़ा न्यूक्लीयस दा रेडियस होगा अपने कोल वो वाली वैल्यू आपां नूं उस क्लोजेस्ट अप्रोच ने देनी। सो ये अपने कोल रदरफोर्ड मैथड सी। 3 मैथड्स कर लिया अज आपां। एवोगैड्रो मैथड, नैक्सट की सी ओलियक एसिड उनका अपने कोल साइज, थर्ड अपने कोल रदरफोर्ड मैथड, ठीक है। सो कोई क्वेरी होवे पुछनी है तो ये बारे चंगी तरह पढ़ना है, इनू चंगी तरह सुन लेना। सो गुड बाय बेटा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।